کیا آپ نے کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنی موت دیکھی ہے؟ اس لڑکی نے دیکھی تھی، اور جو آنکھیں اسے یہ سب بتا رہی تھیں وہ اسی ویڈیو میں موجود ہیں۔ وہی ہاتھ جو اپنی پگڑی اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ رہے ہیں، وہی ہاتھ چند دن بعد اس کی سانسیں چھین لیں گے۔ اعتماد نے دھوکہ دیا، بھروسے نے قبر کھو دی، اور محبت تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ کہانی صرف اس لڑکی کی نہیں ہے، یہ ہر اس باپ کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے حوالے کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا۔ یہ ہر اس ماں کے لیے ہے جو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے۔ خاموشی نے اس بار ایک اور زندگی لے لی۔ اگلی بار خدا نہ کرے وہ زندگی آپ کی بیٹی کی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ کہانی ضرور دیکھیے اور سنیے گا۔ مجھے پتا ہے مجھے مار دیا جائے گا، یہ جملہ کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں تھا، یہ ایک زندہ لڑکی کی آواز تھی۔ عدالت کے کمرے میں جج کے سامنے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا، اور اس کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا: میں جانتی ہوں مجھے مار دیا جائے گا، میری زندگی چھین لی جائے گی، میرے جینے کا حق مجھ سے لے لیا جائے گا۔ سب نے سنا، جج نے بھی، وکیلوں نے بھی، عدالت میں موجود ہر شخص نے، لیکن کسی نے اسے سیریس نہیں لیا۔ اور پھر چند ہی دنوں بعد وہی ہوا جو اس لڑکی نے کہا تھا، یعنی اس کی بات سچ ثابت ہوئی، اسے مار دیا گیا، وہ بھی بے دردی سے۔ لیکن کیوں؟ اس عدالت میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو اس لڑکی کا سب سے قریبی تھا۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی، اعتماد دلایا کہ وہ اس کا محافظ بنے گا اور اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوگا، دشمنوں سے لڑے گا۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں تھا، اس کا اپنا باپ تھا، اور بیٹی مان گئی، باپ پر یقین کر لیا، اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن اعتماد، یقین اور بھروسہ، یہ سب ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والا تھا۔ یہ کہانی ہے گل بہاروں کی، سندھ کا ایک ایسا صوبہ جہاں مہمان نوازی کو اعزاز سمجھا جاتا ہے، جہاں زندگی سادہ ہے، نہ اونچی عمارتوں کی چکا چوند، نہ عیش و عشرت کی دوڑ۔ بس مٹی سے جڑے کچھ لوگ کھیتوں میں محنت کرتے ہیں، اور شام ڈھلتے ہی پوری فیملی ایک دسترخوان پر جمع ہو کر کھانا کھاتی ہے۔ سکھر کے علاقے جھانگڑوں میں کچے مکانوں کی ایک چھوٹی سی بستی، اور اسی بستی کے ایک گھر میں رہتی تھی گل بہاروں، چہرے پہ معصومیت، خوبصورت، خوش مزاج اور ایک نوجوان لڑکی۔ سال 2020، آج اس کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، صحن میں چہل پہل تھی، رشتہ دار دور سے آئے ہوئے تھے، ماموں، چاچا، خاندان کے بزرگ، ہر کوئی، سب ایک ہی گھر میں جمع تھے۔ جامع مسجد سے مولانا صاحب پہنچ چکے تھے، سامنے مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے، اور عورتوں کے کمرے سے بھی ہلکی ہلکی ہنسی اور خوش گپوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اس گھر کے ایک کمرے میں گل بہاروں آج دلہن بنی بیٹھی ہے، لال ڈریس، ہاتھوں پر مہندی، شرمائی ہوئی، اور دل میں ہزاروں دھڑکتے ہوئے خواب۔ ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہر نئی دلہن کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی کی لائف میں آنے والا ہم سفر اس کی لائف کو جنت بنا دے گا، اور ہو سکتا ہے وہی ہم سفر اس کی زندگی کو جہنم بنا دے۔ یہ تو سب قسمت کا کھیل ہے۔ خیر، پھر وہ لمحہ آیا، مولانا صاحب نے سب سے پہلے دولہے سے ایجاب و قبول کروایا، پھر دلہن سے، اور یوں گل بہاروں کا نکاح ہو گیا، سکھی لادو بھارو نامی ایک لڑکے سے جو اس کا اپنا ہی کزن تھا، ماموں کا بیٹا۔ ارینج میرج تھی، سب رضامندی سے ہوا، ماں بھی خوش تھی کہ بیٹی اپنے ہی گھر میں گئی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، نہ لڑائی جھگڑا، نہ کوئی بحث، نہ کوئی شکایات۔ وقت گزرتا گیا، اس شادی سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ 6 سال تھیا ہویا، 4 سالن میں 3 سال صحیح ہوئو، 3 سالن ہو پو، 2 سالن ہو پو ننڈڑو جائے، 3 سالن میں 2 سالن جو 3 سالن آرو وہ نہ چ وہ جو تے 2 سالن آر ماں کے آنے جو۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ گل بہاروں اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس خاموش زندگی کے اندر ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا کہ اچانک سب کچھ بدل گیا، معاملات بگڑنے لگے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، معمولی باتوں پر۔ گل بہاروں کا شوہر اسے مارنے پیٹنے لگا،
वो मर्द जो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, जिस पर उसकी बीवी के ओढ़ने पहनने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए औरत अपना सब कुछ छोड़कर आती है, अपने माँ बाप से ज्यादा उससे मोहब्बत करती है, वही शौहर जालिम बन गया, खून का प्यासा बन गया। गुलबहारों ने अपने माँ बाप को कई बार बताया कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है, जुल्म करता है, छोटी छोटी बातों पर वो मुझ पर हाथ उठाता है। जरा ठहरिएगा, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने शौहर का नाजायज जुल्म बर्दाश्त कर रही होती हैं, और माँ बाप शौहर को रोकने के बजाय बेटी को कहते हैं कि बर्दाश्त करो, खामोश रहो, वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने दामाद का खौफ दिल में बैठा होता है। गुलबहारों के शौहर का खौफ भी इसी तरह था। माँ बाप की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने जाकर बात करें, और जो जो वक्त गुजरता गया, गुलबहारों की जिंदगी जहन्नुम बनती गई। Mamanya ba, mamanya pio. Iyo na, bagi biasa पर उन्होंने को डाडा मापोइते न मेंदस मदारा मानम सही। फिर फैसला हुआ गांव में जिरगा बिठाने का। अब फैसला जिरगा करेगा, और उस शौहर ने अपनी बदनामी छुपाने के लिए अपनी ही बीवी पर कारोकारी का इल्जाम लगा दिया। वो जिरगे में खड़ा हुआ और चीख चीख कर कहने लगा, मेरी बीवी गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती है, इसीलिए मैं उस पर सख्ती करता था। मेरी बीवी मेरे और मेरे गांव की इज्जत है, और मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगने दूंगा। जिरगे ने अब फैसला सुनाया, इस लड़की को मार दिया जाए जिसने गांव की इज्जत को खाक में मिला दिया है। 23 अप्रैल 2026 की रात गुलबहारों कई दिनों से अपने मैके आई हुई थी। माँ बाप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि इसका शौहर उसे जान से मारने की धमकियां देता है, गला घोटने की कोशिश करता है, जुल्म करता है। तभी कोई दरवाजा आके जोर जोर से बजाता है। सब लोग खौफ में मुब्तला हो गए। बाहर झांक कर देखा, गुलबहारों का शौहर राइफल लेकर खड़ा है, और आज रात वो अपनी बीवी को जान से मारने की नीयत से आया था। वो जैसे ही घर में दाखिल होता है, सीधा गुलबहारों की तरफ बढ़ता है। गुलबहारों समझ गई आज रात उसकी आखिरी रात है। वो उठी और भागी। शौहर पीछे था और आगे वो मुसलसल भागती रही। Sebagai temu, rumah besar bacaan lah ayas ha bhagam kanda lagi ya kirdi wata pai akeri kiri puga maji dram to biu khai akeri ma pugi jangre ya thane thi jo ma sa ker bina hai। अब यहाँ ये दावा भी किया जा रहा है कि उस रात वो किसी मर्द के साथ घर से भागी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन खैर बस्ती से निकलते ही वो एक घने जंगल में घुस गई थी। जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू, जंगली कुत्ते, झाड़ियां, लेकिन उस रात जंगल का खौफ शौहर के खौफ से कम था। उसने पूरी रात उसी जंगल में गुजारी, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जरा सोचें, एक नौजवान लड़की अकेली रात के अंधेरे में घने जंगल में, सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुबह हुई, आसमान पर हल्की रोशनी आई तो सामने था दरियाए सिंध। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ दरिया। अप्रैल 2026 की रात दरिया पार किया। हाँ, वो बेड़ियम भी ना पानियम। हाँ, पानी हल्को होयो, काथों बड़ो होयो, काथों हल्को होयो। ये वो महीना है जब दरिया ना तो बहुत ऊंचा होता है, ना बिल्कुल खुश्क। लेकिन रात के अंधेरे में अकेले बगैर किश्ती के दरियाए सिंध पार करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। सामने दरिया देखकर गुलबहारों ने हिम्मत नहीं हारी। वो जीना चाहती थी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसने किसी भी तरह दरिया पार किया और सीधी पहुंची सक्खर के मंढारो पुलिस स्टेशन। जरा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें इस मंजर को। एक लड़की घर से निकली, वो भी अकेली, जंगल में रात गुजारी, सुबह की हल्की रोशनी में दरिया पार किया और थाने पहुंची। वो लड़की जानती थी कि घर जाने पर मौत है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रियासत पर भरोसा किया। ये दरख्वास्त देखें, इसमें 11 लोगों के नाम हैं। पुलिस ने लड़की का बयान लिया। उसने एक एक करके 11 नाम बताए जो उसकी जान के दुश्मन थे। मामू, शौहर, जिरगे के तमाम वडेरे, सबके नाम दर्ज करवाए। अगले दिन अदालत में लड़की को पेश किया गया। लड़की ने सारी कहानी सुनाई, जिस्म पर लगे खून और तशद्दुद के निशानात भी दिखाए और रहम की अपील की। उसने फिर कहा, जज साहब मुझे जीना है अपने मासूम बच्चों के लिए। जज ने फैसला दिया, गुलबहारों को गवर्नमेंट शेल्टर होम भेज दिया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ उन 11 लोगों में से किसी एक की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। गवर्नमेंट शेल्टर होम भेजना, शायद ये फैसला उसकी जिंदगी बचा सकता था। अदालत के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, इमदाद बहारो। ये गुलबहारों का वालिद है। इसने देखा बेटी ने जिरगे में बदनामी करवाई है और अब अदालत में भी हमारी इज्जत खाक में मिल चुकी है। उसने अपनी पगड़ी उतारी और बेटी के कदमों में रख दी। दरअसल सिंधी कल्चर में पगड़ी एक मर्द की सबसे बड़ी इज्जत होती है। जब कोई अपनी पगड़ी किसी के कदमों में रख देता है तो उसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी अना, अपनी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। गुलबहारों का दिल पिघल गया। वो वापस अदालत में गई, जज के सामने खड़ी हुई और कहा, मुझे यकीन है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। फिर एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मेरे वालिद ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में रख दी है। वालिद की इज्जत की खातिर मौत भी कबूल है।
मैं अपने वालिद के साथ घर जाना चाहती हूँ। इसके इस एक जुमले के बाद कानून भी बेबस हो गया। जज ने बयान रिकॉर्ड किया और गुल बहारों को बाप की तहवील में घर भेज दिया। और फिर यहीं से शुरू हुए वो 10 दिन जो इस जिंदगी के आखिरी 10 दिन थे। शायद घर में बैठकें हुई, शायद बिरादरी के बड़ों ने फैसले किए। यहाँ एक बात बहुत अहम है, सिंध में कारी का इल्जाम एक हथियार है जिसे कुछ मर्द इस्तेमाल करते हैं औरत के खिलाफ, इसकी आजादी के खिलाफ, उसके वजूद के खिलाफ। गुल बहारों पर भी यही इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो इल्जाम अदालत में साबित ना हो सका। 3 मई 2026 गुल बहारों अपने घर में थी। उसका मामू और उसका शौहर घर में दाखिल हुआ और गुल बहारों को बेदर्दी से गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वो लड़की जो अदालत में कह रही थी मुझे मार दिया जाएगा, उसकी बात आज सच साबित हो गई। कातिल बाहर से नहीं आया था, घर में ही था। आगे क्या हुआ, कातिलों का क्या बना और वो 2 बच्चे जिनके लिए गुल बहारों जीना चाहती थी उनका क्या हुआ, वो सब आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। गुल बहारों की वो वीडियो जो अदालत में भी थी वायरल हो गई और दुनिया ने देखा कि वो जो कह रही थी वो आज सच हो गया। फिर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने इमीडिएटली एक्ट किया और उसमें जो भी नॉमिनेटेड एक्यूज थे उसमें 2 हैं, एक उसके मामू हैं जिन्होंने मारा है और एक उसका हस्बैंड है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। वो भी पुलिस की तहवील में है और वो रिमांड में है। और इसके अलावा जो 2 अक्यूज्ड हैं वो अभी तक एट लार्ज हैं। पुलिस एफर्ट्स कर रही है कि उनको भी हम अरेस्ट कर लें। पुलिस ने मामू और गुल बहारों के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और अब वो रिमांड पर हैं। लेकिन वो 11 लोग जिन्होंने जिरगे में बैठकर फैसला सुनाया था कि इस लड़की को मार दिया जाए, वो अभी भी आजाद हैं। और वो बाप जिसने अपनी बेटी के कदमों में पगड़ी रखी थी, जिसने वादा किया था कि वो इसका मुहाफिज बनेगा, इसके आगे ढाल बनकर खड़ा होगा, दुश्मनों से लड़ेगा, उसी बाप ने अपनी बेटी को दुश्मनों के आगे डाल दिया। ये ऑनर किलिंग का पहला केस नहीं था और ये भी जान लें कि ऐसे बहुत से केसेस हम पहले भी सुन चुके हैं। सिंध और दीगर सूबों में कारी के नाम पर कत्ल की तारीख सबसे लंबी है। इंटरनेशनल इदारे दी गार्डियन के आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ 2024 में कम से कम 405 ऑनर किलिंग के केसेस ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिपोर्ट हुए हैं और 2025 में ये तादाद मजीद 43% बढ़ गई है। ऑनर किलिंग के कई चेहरे हैं जिसकी मिसालें बात करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब आते हैं गुल बहारों की कहानी पर। गुल बहारों के 2 बच्चे, आज वो अपने खानदान में किसी घर में पनाह लिए हुए हैं और वो अपनी माँ के बगैर किस हाल में होंगे। क्या वो समझते हैं कि उनकी माँ के साथ जो हुआ वो ठीक था? और एक दिन जब वो बड़े होंगे क्या वो अपनी माँ की ये कहानी सुनेंगे? क्या वो ये बात मानेंगे कि उनकी माँ ने अदालत में क्या कहा था, मुझे अपने बाप की मोहब्बत में मौत कबूल है? लेकिन उसने अपने लिए नहीं कहा था, उसने अपने बाप की पगड़ी के लिए कहा था, उसकी इज्जत के लिए कहा था। गुल बहारों का वापस जाना ये बाप की मोहब्बत थी या फिर मजबूरी? हम बस इतना जानते हैं कि गुल बहारों अब इस दुनिया में नहीं है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें से बहुत से अभी भी आजाद हैं। क्या वो भी कानून के शिकंजे में आएंगे?